प्रिया श्रीनेत प्रेस वार्ता कर रही है, क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। मैं राष्ट्रवादी होता तो 2 टूक अमेरिका को सुनाता और कहता हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, आप माफी मांगिए। हम यूएन जाते, उनके खिलाफ हम मोशन लाते, लेकिन नरेंद्र मोदी की हैसियत ये करने की नहीं है। जो व्यक्ति अपने 3 भारतीयों की मौत पर बोल नहीं पा रहा है, वो और किस चीज के लिए बोल सकता है? Supriya ma'am, this side, as you just mentioned that India has not challenged the killing of the 3 Indian mariners in Gulf of Oman. So ma'am, if India does not challenge this, do you think that this precedent can also be seen in the coming days in Indian Ocean region? I mean, if the Indian government doesn't stand up for its own citizens, then who on earth are we going to stand for? Why has the government been elected? Mr. Modi has not been elected to wave his hand at a dancing troupe. He has not been elected to go from France to some other country that he has gone to go and see Indian dancing troops everywhere. He has not gone to different countries to, meet and hug various leaders. He has been elected to ensure that India gets justice in every sphere. And if Indians are being killed, then Mr. Modi needs to speak up. And yes, I fear this will be a precedence. If he doesn't speak up, if his government doesn't speak up. His government spoke up, but that seems to be a blatant lie. And if that is not a lie, then Marco Rubio is lying. And if Marco Rubio is lying, why is Jaishankar quiet? Why is Jaishankar not lodging his biggest protest and saying that the American Secretary of State is lying? Why can, between Mr. Jaishankar and Mr. Modi and his entire government, why can they not summon the courage, gather the courage to stand up for Indians? What on earth have you been elected for? Ma'am, an agreement is also going to be signed between the United States and Iran on 19th of June to halt the hostilities, and there will be a reopening of the Strait of Hormuz. What is the official take of the Congress party regarding this matter, and how the government of India has also dealt during this entire crisis? So, the Congress party welcomes any move that will restore peace to a war-torn region. I say this without if, without any but. The Congress party welcomes any peace process. The Congress party wants peace to be there, prevail in the world, because innocent civilians pay a price when war happens. But the Congress party also wants to ask a question. You asked me, what is my stand on the role of Government of India? Did you see the Government of India in the last 4 months? Because I did not. Where was the Government of India? What role did Mr. Modi play? Was he called to the table where peace negotiations were happening? Why was India left out of the peace negotiations? India is a much bigger power than Pakistan can ever be in the South Asian region. How is it that Pakistan was a part of the peacemaking process, but we were not? We have been left high and dry. We keep calling ourselves Vishwa Guru, 56 inch की छाती है. कहाँ है भैया वो छाती? किस बिल में घुस गए थे विश्व गुरु? कहाँ थे? मैं पूछना चाहती हूँ, 4 महीने में हिंदुस्तान कहाँ था? हिंदुस्तान की सरकार कहाँ थी? नरेंद्र मोदी किस गुप्त गुफा में जाके बैठ गए थे? गुफा में कहाँ था? कहाँ है भारत का रोल? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, हमारे लोगों को दिक्कत हुई. गैस की किल्लत हमारे यहां हुई, पेट्रोल डीजल के दाम हमारे यहां बढ़े, जेबों पर डाका हमारे यहां डाला गया. भारत सरकार का क्या रोल था? जीरो रोल था, कोई रोल नहीं था. आप लोग टीवी चैनल पे भरे लोग दिखा दीजिए, उनका रोल है हाथ हिलाना. संगीत नाटक अकादमी में भर्ती हो जाते, वो बेटर था उनके करियर के लिए. देश के प्रधानमंत्री बनके देश का चौपट कर दिया है. मौसमी जी, मेरा मौसमी जी आपके दिमाग पर छाई हुई हैं, बगल में बैठे हैं. चलिए पूछिए जी. मेरा सवाल ये है कि टीएमसी के बागी जो विधायक जो सांसद थे, अब उन्होंने एनसीपीआई का रुख अख्तियार करने का फैसला कर लिया है. दूसरा एक और सवाल है कि आपके सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देती आज के दौर में. किस तरीके से देखती हैं आप? क्या जो सुओ मोटो था उस पर सवाल खत्म हो गए? उसके बाद मैं सवाल का जवाब दूंगी. पहले सुओ मोटो पर ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी इस जवाब के लिए.
रौशनी जी। मैम इसी में मैं पूछना चाह रही थी, जो अमेरिका और ईरान के बीच में डील हुई है, इसी बीच पाकिस्तान मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री उसका स्वागत करते हैं, और लगभग 18,000 नाविक अभी भी फंसे हुए हैं, 13-14 जहाज, भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी वहां पे हैं, ट्रंप से मुलाकात होने वाली है उनकी, इस बाबत उनको कुछ डिमांड रखनी चाहिए? बिजली सी कड़कती हुई केमिस्ट्री थोड़ी देर में दिखाई देने लगेगी जैसे ही ट्रंप से मिलेंगे मोदी जी, लेकिन उस केमिस्ट्री का फायदा क्या हो रहा है? क्या मोदी जी ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बोले कि आपकी सेना ने निर्दोष भारतीयों की क्रूर हत्या क्यों की? क्या वो ये साहस जुटा पाएंगे कि वो उनसे पूछे कि मार्को रूबियो की हिम्मत कैसे हुई हत्या के बाद धमकी देने की? हाथ पे हाथ धरे रहे मोदी जी, हमारे नाविकों को वो वापस तक नहीं ला पा रहे। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उनके कैप्टन को वीडियो बनाकर बोलना पड़ रहा है इसको वायरल कीजिए जिससे अथॉरिटीज सुने मेरी बात। और जब वो वायरल हुआ तब उनके शव को वापस, जो डिकम्पोज होना शुरू हो गया था, आपने देखा होगा उनके पास बर्फ नहीं थी, पानी की ठंडी बोतलों से उनके शव को वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कहां गायब है सरकार भाई? 13-14 हजार आप कह रही है जहाज फंसे हुए हैं, क्या उनकी सुरक्षा, वहां पर जो मोस्टली क्रू मेंबर्स इंडियंस होते हैं, टॉप 3 देश जो इस तरह की वेसल्स में क्रू प्रोवाइड करते हैं, उसमें इंडिया एक है। हमारे कितने नागरिक उसमें फंसे हुए हैं? सरकार ने क्या प्रयास किया उनको वापस लाने का, उनकी सुरक्षा का, उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल के रिव्यू करने का? प्रधानमंत्री स्वागत